नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी एंड माही बैरगेट। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आसनसोल के बर्नपुर बर्न स्टैंडर्ड फैक्ट्री की वागन कॉलोनी में बिजली की कटौती और पानी की किल्लत को लेकर कई बार सड़कों पर पहले भी एहतजाज हुआ है, पर इन सब के बावजूद हालत में कोई तब्दीली नहीं है। रात 9 बजे बिजली आती है और सुबह 5 बजे काट ली जाती है। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि बार बार शिकायत करने और भाग दौड़ करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ है। तो अब यहाँ के बाशिंदों ने वोट का बाइकआउट करने का फैसला किया है। इनका दावा है कि लंबे वक्त से ये लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बर्न स्टैंडर्ड के एक साबिक मुलाजिम ने कहा कि हम मजबूर हैं और हम लोग इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। জল লাইট দিলে ভোট পাবে আগে একটু ভালো করে দাঁড়া, এটা দেখা ভালো করে। কোম্পানি একজন প্রাক্তন শ্রমিক শিশির চ্যাটার্জি এবং কোয়ার্টারি বসবাস করি, কোয়ার্টারি থাকি। আজকে আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং দেওয়াল লিখেছেন যে জল নেই, লাইট নেই, ভোট নেই। হ্যাঁ, আমরা বাধ্য হয়েছি একদম নিরুপায় হয়ে, কারণ আমাদের এখনও কোম্পানি ঘরে বকেয়া প্রাপ্য মেটেনি, হাইকোর্টে কেস চলছে এবং এরকম অবস্থাতে কিছুদিন আগে জলও কেটে দিয়েছিল, মাঝে মধ্যে একদিন করে জল কেটে দিচ্ছে, আবার রাস্তা ঘেরাও আন্দোলন করে প্রশাসক মহলে হাতে পায়ে ধরে আবার জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ রাত্রি 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত বিদ্যুতের লাইন দেয়। এত বড় লকডাউন গেল, এই অন্ধকারে বিনা বিদ্যুতে আমরা পড়ে থেকেছি। আমাদের ঘরেও ফ্যামিলি আছে, বাচ্চাদের পড়াশোনা আছে, অসুস্থ বয়স্ক মানুষরা আছেন। খুব কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন হচ্ছে। প্রশাসক মহলে এবং বিভিন্ন নেতৃত্বের কাছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দৌড়াচ্ছি যে বিদ্যুতের আমরা নিজেরা তার খরচা বহন করব, বিদ্যুতের লাইনটা কমসে কম দিন। মানুষ যেখানে বসবাস করছে জল আর বিদ্যুৎ জরুরি পরিষেবার মধ্যে পড়ে, এটা ছাড়া কি করে মানুষ থাকতে পারে। আমরা বিভিন্ন নেতৃত্বের কাছে দীর্ঘদিন ধরে দৌড়াচ্ছি, কিন্তু কোনো রকম এখনও পর্যন্ত রেজাল্ট আমরা পাইনি, যার ফলে বাধ্য হয়ে এখানকার বসবাসকারী মানুষজন সবাই মিলে ডিসিশন নিয়েছে যে আমরা তাহলে জল বিদ্যুৎ কিছুই পাবো না, কেউ আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না, তাহলে আমরা ভোট দিয়ে করব কি? আমরা নিরুপায়, অসহায়, আমাদের পাশে যখন কেউ দাঁড়াচ্ছে না, আমরা ভোট দিয়ে করব কি? কি আপনাদের সমস্যা? আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেখুন রাত 9টার সময় যে লাইন দেয় ভোর 5টায় কেটে দেয়, তারপরে মানে সারাদিনটা আমাদের বিনা লাইনে থাকতে হচ্ছে। এমনিভাবে থাকতে কি পারা যাবে? আর এখন গরমকাল চলে এসেছে, বলুন। তো কটা থেকে কটা পর্যন্ত আপনাদের লাইন থাকে না? আমাদের দেখুন ভোর 5টায় লাইন কেটে যায় আর রাত 9টার সময় লাইন দেয়। আমাদের জল লাইট নেই, এবারে জল লাইটে না থাকার জন্য আমাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা, আমাদের থাকা সব কিছু নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভোটার, আমরা আজ 3 বছর দিকে সবার কাছে গেছি, কিন্তু কেউ আমাদের দিকে তাকায়নি, যার জন্য আজকে ভোট বয়কট করার ডাক দিয়েছি। গোটা কলোনি মিলে নিয়েছি যে যেহেতু সকাল ভোর 5টায় লাইন কেটে দেয়, রাত 9টায় লাইন দেয়, কিন্তু সব জায়গাতে লাইট আছে, আমরা কেন লাইট জল পাবো না? যার জন্য আজকে আমরা এই ডিসিশনে এসেছি যে আমরা ভোট কারুকে দেবো না। हमारी लड़ाई आसनसोल नॉर्थ में बीजेपी से है, टीएमसी कोई फैक्टर नहीं करती। सीएए और एनआरसी के खिलाफ तहरीक चलाने वाले मुस्तकीम सिद्दीकी ने आज ये बातें खबर आसनसोल के नुमाइंदे से कही है। आपको बता दें कि कल ही आईएसएफ ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है।
आसनसोल नॉर्थ से मुस्तकीम सिद्दीकी के नाम का ऐलान हुआ है। इस ऐलान के बाद आज वो आईएसएफ की हिमायती सीपीआईएम पार्टी ऑफिस पहुंचे। इस मौके पे पार्थो मुखर्जी खास तौर से मौजूद थे। इस उम्मीद से मैदान में उतरे। देखिए, जीत तो सबसे फास्ट जो चल रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है, चूँकि हमारा काम अभी से नहीं हो रहा, कई महीनों से हो रहा है, इसलिए हम जीत के पक्के दावेदार हैं। और इस कुछ लोग या ख़ास तौर से तृणमूल के नेता ये कह रहे हैं कि आईएसएफ या इस तरीके से आपकी जो उम्मीदवारी हुई है, ये सिर्फ वोट कटवा की हैसियत रखते हैं, सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। अगर वोट काटने की बात है कि अगर वोट कटवा कर साबित किया जा रहा है, तो ये तो तृणमूल वाले सभी को वोट कटवा कह रहा है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। ये साफ इंडिकेशन दीदी ने कहा है, आनंद बाजार पत्रिका में एक बार 1 महीना पहले प्रिंट भी हुआ था कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। दीदी प्रमोट कर रही है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, यानी हम बीजेपी के साथ है, बाकी कोई कुछ नहीं है। लेकिन ठीक उसी दीदी की पार्टी के जो आसनसोल के एक्स मेयर रह चुके हैं, टीएमसी की तरफ से प्रेसिडेंट रह चुके हैं जितेंद्र तिवारी, वो खुद कह रहे आसनसोल नॉर्थ में हमारी लड़ाई आईएसएफ के साथ है। अब आप किससे सही मानेंगे? कुछ लोग का ये भी कहना है कि आप बाहर के कैंडिडेट, आप बाहर के हैं, शायद आप बिहार, झारखंड या जमुई से ताल्लुक़ रखते हैं, आसनसोल से वैसा आपका लगाव नहीं है, आप बाहर के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ आप चुनाव में बाहरी जो शब्द आ रहा है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले ये कि यहाँ पे जितने लोग हैं मेरे बारे में जानते ही नहीं हैं, वो हवाबाजी कर रहे हैं। मेरी पैदाइश बिहार में नहीं, बंगाल में हुई है। मैं पढ़ा लिखा जवान हुआ हूँ बंगाल में। मेरी कंपनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इनकॉर्पोरेटेड है वो बंगाल में है। हमारा कार्य क्षेत्र बंगाल है, बिहार भी है, झारखंड भी है। सिर्फ अभी नहीं बल्कि कई सालों से मैंने यही, जिस क्षेत्र में मैं कंस्टिट्यूंसी मेरा पड़ता है, जहाँ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वहाँ पे सुगम पार्क है, वहाँ बड़े घोटाले हुए, उसकी लड़ाई हमने लड़ी। आज आप जाके देखिए वहाँ पे जो LIG कॉलोनी बनी है, ये LIG कॉलोनी को ख़त्म कर दिया गया था, नक्शा से मिटा दिया गया था। हमारी लड़ाई का असर है कि ये LIG कॉलोनी हमने RTI भेजा, दबाव बनाया, कई बार इनके हेडक्वार्टर्स गए, आसनसोल दुर्गापुर ADDA आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसेज में गए, और वहाँ पे आज आप जाके देखिए अभी कुछ खड़ा है, जबकि इन्हें 2007 का एग्रीमेंट था कि 2011 में कंप्लीशन कर देना है। 2011 तक नहीं हुआ, फिर हम लड़ाई लड़े तो 2016 तक लड़ाई लड़े, अभी जाकर कंप्लीट हुआ। सोशल मीडिया में आपका लेके कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं कि आपका आपराधिक गतिविधि है, जिस वजह से आपको वोट ना दिया जाए। आपराधिक गतिविधि जहाँ तक है, कोर्ट से हम कन्विक्टेड नहीं हैं। ये पूरी की पूरी साजिश हमारे खिलाफ की गई। NRC और CA के आंदोलन के ख़िलाफ़ जो हमने बड़ा मूवमेंट किया था, CA और NRC को हमने रिजेक्ट किया था। देश भर में शाहीन बाग की तर्ज पे शहर आसनसोल में भी नज़रुल बाग बना था। उस नज़रुल बाग को बनाने के लिए और आसनसोल की आवाम में, इंसाफ पसंद आवाम को ज़िंदा करने के लिए, उनमें इनकलाबी जोश जुनून पैदा करने के लिए ये TMC के नेताओं के ज़रिया हमें एक साजिश करके फंसाया गया, और उस साजिश का पर्दाफाश हो गया, जिसे हम आने वाले चुनाव में सबूत के साथ पेश करेंगे कि ये इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। और अगर हम बाहरी थे तो यहाँ के मंत्री मुझको बुलाकर कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। बाहरी का साथ क्यों चाहते हैं मंत्री जी? अगर हम बाहरी हैं, वोट कटवा हैं, तो मंत्री जी वोट कटवा को अपने साथ रहने के लिए 22 नवंबर 2020 को क्यों अपने घर पे बुला के घंटों चर्चा करते हैं, साथ देते हैं, कई लोगों के ज़रिए खबर करते हैं। ये वोट कटवा यहाँ के जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछिए, या जो ऐसा कह रहे हैं कि हम आपराधिक छवि है, तो मंत्री जी उस आपराधिक छवि, मंत्री जी का मतलब हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो हैं मलय घटक जी, उस आपराधिक छवि का सहारा लेकर अपने घरों में क्यों बैठाते हैं? चलिए, जितेंद्र तिवारी का तो कहना है कि आसनसोल नॉर्थ में बीजेपी की लड़ाई ISF से है, आप क्या कहते हैं? आपकी लड़ाई, ISF की लड़ाई आसनसोल नॉर्थ में किससे है? देखिए, हमारी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी को हम डिफीट देंगे। TMC यहाँ पर कोई वजूद नहीं रखता है, और अगर वजूद रखता तो हमें बुलाता नहीं।
टीएमसी का आपने कहा कि आपराधिक छवि है, आप टीएमसी का राज्यसभा सांसद हैं विवेक गुप्ता, उनका एक पेपर निकलता है सनमार्ग। सनमार्ग जो है एक पेड न्यूज़ बनाता है कि हमने करोड़ों की ठगी की है। सनमार्ग के पास एक सबूत ने, आपके मीडिया के हवाले से हम चैलेंज करते हैं, चुनौती दे रहे हैं कि वो एक सबूत दे दें कि 1 रुपये की भी ठगी है या कोई भी कह रहा हो, चूँकि ये फंस चुके हैं। और इन साजिश करने वालों के खिलाफ हमने पटना के हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल किया है। जमुई के एसपी के डॉक्टर इनामुल हक मेगनू के खिलाफ, वो डॉक्टर इनामुल हक मेगनू कई लोगों के ज़रिया हमें ख़बर भिजवाया है कि हमसे गलती हो गई, हम एक साजिश के शिकार खुद हो गए, हमें माफ़ कर दिया जाए और समझौता कर लिया जाए। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। आइंदा 26 अप्रैल को आसनसोल साउथ असेंबली हलके से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सायुनी घोष को जोड़ा फुल में वोट देकर कामयाब बनाएं। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे, तो फिर कहीं और क्यों जाना? हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी। क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आज पूरे देश में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से आज और कल बैंक हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसी के तहत रानीगंज में भी लगभग बैंक बंद रहे। आज रानीगंज में बाया मुहाज की तरफ से एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। इसी के तहत यहां के एमएलए रूनू दत्ता ने कहा कि मरकजी सरकार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर तुली हुई है। इसको लेकर पहले भी कई बार एहतजाज किया गया था, पर सरकार ने अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। इन्होंने बीजेपी हामियों से भी अपील की है कि वो भी इनके एहतजाज का हिस्सा बने, क्योंकि करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, नए रोजगार नहीं है। सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाकर पेट नहीं भरता। পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি প্রাইভেট কোম্পানি রেল চালাচ্ছে বর্ধিত হারে ভাড়া দিয়ে। আমাদের এখানে আমরা যা আছি এই অঞ্চলের মানুষ, অতীতে আমাদের এখানে বন্ড কারখানা ছিল, বন্ধ হয়ে গেছে। গ্লাস ফ্যাক্টরি ছিল, যেখানে বলে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা ছিল, বন্ধ হয়ে গেছে। আমার গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে এবং কলিয়ারির ওপর আইনজাত হয়েছে। নতুন কলিয়ারি খোলা হবে, তার টেন্ডার হবে, আইন পাস হয়েছে, বেসরকারি লোক নিতে পারবে। শুধু নিতে পারবে না, ওদিকে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু প্রাইভেট কোম্পানি কলিয়ারি চালাচ্ছিল, কিন্তু তাদের সেল রাইট ছিল না। তারা উৎপাদন করত, সেই উৎপাদন হচ্ছে তাকে দিয়ে দেওয়া হতো, তার খরচ পেত, তার দামই ছিল এবং সরকার তা বিক্রি করত। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है।
आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर, और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपना है। इसराइल्स, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल।